آپ اعلان کر رہے ہیں دیش کے غداروں کو گولی مارو سالو، اور دوسرے ہی دن پھر ایک اور واقعہ، تیسرے دن جے شری رام کہتا ہوا کوئی آدمی جائے اور ہوائی فائرنگ کرے، پکڑا جائے اور پکڑ کے صاف طور پر یہ کہے ہمارا نام یہ ہے، پکڑا بھی جائے اور جے شری رام، اوفو، کیوں اس مہان پروش رام چندر جی کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ رام چندر جی کی یہ شکشا تو نہیں تھی میرے پیارے دیش واسیوں، میرے پیارے ملک دیش میں رہنے والوں، میں اسلام کا پیروکار ہوں، ہندو دھرم کا مطالعہ میں نے بھی کیا ہے، ویدوں اور رامائن کو میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن میں اس دیش میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شکشا رام کی نہیں ہے، یہ شکشا رام کی نہیں ہے، یہ شکشا رام کی نہیں ہے۔ جو لوگ ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور گولیاں چلا رہے ہیں جے شری رام کا نام، یہ لوگ رام کو کلنکت کر رہے ہیں۔ رام تو ایک بہت بڑے مہان پروش تھے، رام تو مریادا پروشوتم کہلائے جاتے ہیں، یہ ان کی شکشا نہیں ہے، یہ ان کی شکشا نہیں ہے۔ آپ رسوا کر رہے ہیں رام کو بھی اور ہندو دھرم کو بھی۔ ہندو دھرم یہ شکشا نہیں دیتا ہے جو آج ٹھیکیداروں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی ہندوتو ہے، جیسے بے قصوروں کو مارنا، بے قصوروں پر لاٹھیاں چلانا، بے قصوروں کو چھلی چھلی کر دینا، اپنے سینے پر بم باندھ کر آتم ہتیا کر لینا، فدائی حملے کر لینا اور اس کو جہاد کا نام دینا، جس طریقے سے یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے، جس طرح یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر فدائی حملہ کر لینا اور بے قصوروں پر ٹوٹ جانا اور ان کو ہلاک کر دینا، جیسے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، ایسی جے شری رام کا نعرہ لگا کر فائرنگ کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہندو دھرم کی شکشا نہیں ہے، یہ رام چندر جی کی شکشا نہیں ہے۔ ادھر مسلمان آپے سے باہر، یہاں پر نام نہاد اسلام کو بدنام کرنے والے بہت سے لوگ تمہیں ملیں گے جو اسلام کو جہاد سے جوڑتے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد کی پرمپرا نہیں ہے، اس کو اسلام جہاد نہیں کہتا ہے۔ اسلام کا جہاد تو یہ ہے، اگر پیاسا ہے کوئی آدمی اور مرا جا رہا ہے پیاس سے، آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، آپ کو لمبا سفر کرنا ہے، لیکن آپ اس پیاسے کو پانی پلا کر اس کی جان بچا دیں، اسلام کہتا ہے اس سے بڑا جہاد کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ پر پیاس کو برداشت کر کے دوسرے کو پیاس پانی پلا دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایک آدمی اگر مر رہا ہے وہ کسی دوسرے مذہب کا ہے اور تمہارا بلڈ اگر چڑھنے سے اس کی جان بچ رہی ہے، ایک بوتل اپنے بدن سے خون نکال کر اس ہندو کی، اس سکھ کی، اس عیسائی کی، اس پارسی کی جان بچا لو تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اسلام یہ جہاد کی پریبھاشا بتلاتا ہے، اسلام
इंतजाम करने में हजरत उमर ने अपनी बीवी को उठाया, तेल लिया, कपड़ा लिया, उनको की बीवी उस गैर मुस्लिम के घर में गई, अंदर घुसी और उसकी बीवी को मालिश किया और धीरे धीरे पेट को दबाया और नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, उन्होंने उस बच्चे को उस औरत के शरीर से और जिस्म से बाहर निकाला। बच्चा रोते हुए बाहर आया, उसकी किलकारियों से घर गूंज गया। जब बच्चे को इस औरत ने, अमीरुल मोमिनीन की बीवी ने अपने हाथ में लिया तो चीख पड़ी, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। जब उस आदमी ने इस औरत की ज़बान से निकलने वाले लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन को सुना तो देखने लगा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप उमर हैं। हज़रत उमर ने कहा, नहीं, मैं खादिम हूँ, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन ये खिदमत का शर्फ मुझे मिला है। इस्लाम कहता है ये सबसे बड़ा जिहाद है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे मीडिया वालों, तोड़ मरोड़ के पेश मत करो जिहाद को। इस्लाम ये कहता है किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये जिहाद है। इस्लाम ये कहता है किसी के मुसीबत में काम आकर उसकी मुसीबतों को दूर कर देना, ये जिहाद है। कोई आदमी अगर बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी जान को खतरा है, तुम्हारा खून अगर देने से वो बच जाए तो उस वक्त उसको खून देकर बचाओ, ये जिहाद है। तुम्हारे बच्चे बिगड़े हैं, जुआ और शराब के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको सुधारो, उनको ढंग से लाओ, उनको शिक्षा और तालीम दो, ये जिहाद है। अगर तुम्हारी बीवी से बनती नहीं है तो उसको तलाक नहीं, सुधरने के पूरे पूरे मौके दो, समझाओ तो ये जिहाद है। और बिगड़ी हुई बीवी को रास्ते पे लाओ तो ये जिहाद है। इस्लाम जिहाद की ये परिभाषा बताता है, जिद्दोजहद। और हाँ, इस देश के अमन और सलामती के लिए, इस देश के की इज्जत को बचाने के लिए, इस देश के की शांति को बहाल रखने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, मेरे भाइयों, अगर किसी से लड़ते हुए देश की इज्जत को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के कानून को बचाने के लिए अगर लड़ते हुए हमारी जान चली जाए तो ये भी जिहाद है, क्योंकि हम हुब्बुल वतनी में अपने देश की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, ये भी जिहाद है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिहाद को जो समेटने की कोशिश मत करो, जिहाद को समेटने की कोशिश मत करो कि बस तलवार उठाओ और मारो गैर मुस्लिमों को। ये जिहाद ये तुमने बताया है, ये तुमने दुष्प्रचार किया है, ये मीडिया वालों तुमने लोगों के माइंड में भरा है। इस्लाम बेकसूरों को मारने को जिहाद नहीं कहता है। इस्लाम कहता है मन कतला नफ्सन, जिसने किसी एक नफ्स को, एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया, फकअन्नमा कतलन नास जमीआ, वो एक इंसान को, एक मनुष्य को नहीं, पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है, वो पूरे विश्व का कातिल है। एक मनुष्य को कहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर किसी ने एक को कत्ल कर दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर तुमने नाहक तरीके से किसी का कत्ल किया तो एक मनुष्य का कत्ल नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये इस्लाम सबसे बड़ी दहशतगर्दी कह रहा है, किसी इंसान को मारना। और ये भी कहा वमन अहयाहा, जिसने किसी एक मनुष्य को बचा लिया, जिसने किसी एक नफ्स को बचा लिया, चाहे वो हिंदू ही हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी, अगर किसी ने किसी एक को बचा लिया तो उसने किसी एक को नहीं बचाया, उसने उस एक की जान नहीं बचाई, फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, उसने पूरे विश्व की इंसानियत को बचा लिया, उसने पूरी मानवता को बचा लिया। ये बचाना भी जिहाद है। एक इंसान को मौत के रास्ते से, मौत के दरवाजे से, मौत के मुंह से निकालकर अपना ब्लड देकर, या आपके पास पैसे हैं, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा है, उसके पास नहीं है, 50,000 रुपए जमा करो, आपके पॉकेट में 50,000 है, उसके पास है, लीजिए डॉक्टर साहब, ये आप ऑपरेशन शुरू करिए, उसकी जान बचाइए, आपने बचा लिया, तो इससे बड़ा जिहाद भी कोई नहीं है, क्योंकि आपने एक मनुष्य को बचाया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस्लाम इसको भी जिहाद कहता है। आप कहां ले जा रहे हैं? आप क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों भारत की यकजहती को बर्बाद करना चाहते हैं? आप क्यों, आप हिंदू और मुस्लिम और भाईचारे को और इत्तेफाक और इत्तेहाद को, यकजहती को आप खत्म करने का सपना देख रहे हैं? आप मेरे भाइयों, आओ
पवित्र छाया में आओ, शीतल छाया में आओ। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, ये है इस्लाम की तालीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे। ये दौर फितनों का दौर है, ये दौर क़त्ल व गारत का दौर है। आज जहाँ भी देखे, जिस तरफ भी देखे, सिर्फ क़त्ल व गारत देखने को मिल रही है। धर्म के नाम पर अधर्म काम किए जा रहे हैं, मज़हब के नाम पर मज़हब को बदनाम करने के काम किए जा रहे हैं। और ये हरकत बड़ी ही सोची समझी साजिश के तहत होती है। बस कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर लोग ये सारे काम अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी आस्था, अपने ईमान को बेचकर धर्म के नाम पर धर्म काम करवाते हैं और बेगुनाह लोगों की जान से खेलते हैं। और गोदी मीडिया जो सरकार की चाटुकारिता रहती है, जो इन जैसे लोगों की जो नफ़रत फैलाते हैं उनका साथ देती है, उनके टुकड़ों पे पलती है, ऐसी गोदी मीडिया धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करके देश में दंगे फितना फसाद फैलाती है। लिहाजा कहने का मतलब यही है दोस्तों, जो भी इंसान बेगुनाह लोगों को मरवाता है, दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो भी इंसान किसी को मरवाता है या ख़ुद उसको मारता है, उसका कत्ल करता है या फितना फसाद करता है, चाहे आप उसे टेररिस्ट कह लो, चाहे आप उसे आतंकवादी कह लो, तो इनका किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि कोई धर्म मार काटने की तालीम नहीं देता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने कुछ फ़ायदे के लिए किसी भी बेगुनाह इंसान को मारते हैं और उससे खून की होली खेलते हैं या उसकी जान से खेलते हैं। लिहाजा इन्हें किसी धर्म से जोड़ना ये गलत बात होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।